Hello students, welcome to your channel Sabish English Classes. I hope you all are good, and in today's video lecture I have again picked up this book The Merchant of Venice, which is from ICSE board, and I am going to explain line by line this Act 1 Scene 2, which is taking place in Belmont, and Belmont is the place where Portia lives. So this scene is particularly taking place in a room of Portia's house. Enter Portia with her waiting woman Nerissa, and in this scene Portia enters with her waiting woman named Nerissa, who is her maid. You understand, a waiting woman who is such a maid who will not only serve her mistress but also would act like a friend to her mistress. So Portia is saying, "By my troth, Nerissa, my little body is aweary of this great word." By my troth means truly, really, actually, Nerissa, my little body is aweary. Aweary means tired of this great word. सच में Nerissa, मेरी ये छोटी सी बॉडी इस बड़ी सी दुनिया से थक चुकी है. My little body is tired or exhausted of this great word, or the problems of this great word. To which Nerissa is saying, "You would be, sweet madam, if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are. But madam, you should have said so if your miseries or problems or troubles or misfortune had been in this much of abundance, or you can say ample, plentiful, in large quantity as your good fortunes are. That means, madam, you are so rich, you are a princess, there is nothing which we can say has got a lacking point in your kingdom. You have got everything, and still, despite all these fortunes, you are making a complaint and saying that you are tired, your body is tired of the problems and the miseries of this great world. How can you say so? You should have been saying so if your misfortune or your problems, troubles in life had been as much in abundance or plentiful or ample as your fortunes are, as you have got the good luck, or you can say wealth and happiness and everything. See, Nerissa is actually not able to understand the viewpoint of her mistress named Portia, and Nerissa being a gentlewoman or being a waiting woman, she is thinking from the perspective of a person from a lower background or such a background where they are not economically strong. सो नेरिसा के पास बहुत पैसे नहीं हैं, नेरिसा कोई प्रिंसेस नहीं है, वो बस एक सर्वेंट है, जेंटल वुमन है या वेटिंग वुमन है जो कि सर्व करती है पोर्शिया को. पोर्शिया एक प्रिंसेस है. अगर एक प्रिंसेस ये कहे कि मेरी बॉडी इस बड़ी सी दुनिया से थक चुकी है, मेरी छोटी सी बॉडी अब इस बड़ी सी दुनिया की प्रॉब्लम्स को झेल नहीं पा रही है, तो जाहिर सी बात है कोई भी वहाँ पर जो एक यू कैन से कि नेरिसा के प्लेस पे जो लेडी होगी या फिर जो एक लोअर इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करती होगी, तो उसको इस बात का बुरा लगेगा कि आपके पास किस चीज़ की कमी है. आपके पास सब कुछ है, यू आर सो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली, and despite everything you are making a complaint and saying that you are tired due to the problems of the world. So Nerissa is saying कि मैडम आप ये सब कुछ तब कहती अगर आपकी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी लाइफ में होती, जितना ज़्यादा आपका गुड फॉर्च्यून है, तो फिर अच्छा लगता. एंड येट फॉर ऑट आई सी दे आर सिक दैट surfeit with too much as they that starve with nothing. All right. Then Nerissa is saying फिर भी for aught means for nothing. I see, हमने एक चीज़ देखा है कि वो लोग जिनके पास किसी बात की कमी नहीं होती, और अक्सर वो लोग इतना ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, जितना कि कोई वो इंसान करेगा जो सुबह शाम भूखे मर रहा हो. So that they are sick
they are as sick that surfeit with too much. Surfeit with too much का मतलब है all those people who have got wealth in abundance, who have got good fortunes, plentifully or in a large amount. ऐसे लोग हर वक्त इतनी कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, इतने अपसेट होते हैं कि आप उनको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये उन लोगों से भी ज़्यादा दुखी हैं जो 2 वक्त का खाना अरेंज नहीं कर पा रहे और भूखे मर रहे हैं. सो पोर्शिया इज सेइंग कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जिनके पास सब कुछ इतना ह्यूज क्वांटिटी में होता है वो उनकी तरह सैड होते हैं जो भूखे मर रहे हैं, स्टार्व कर रहे हैं. स्टार्व मीन्स दोज हु आर डाइंग ड्यू टू हंगर. It is no mean happiness, therefore to be seated in the mean. Superfluity comes sooner by 5 years, but competency lives longer. So here it is important from the perspective of your reference to context type of questions that can be framed from this extract, because these lines have got such words which are pun or which have got 2 meanings at the same place, and therefore it can be asked in your question. It is no mean happiness. Here this word mean actually is saying not small, less. So the first word, ये जो पहली बार mean का इस्तेमाल हुआ है, इस mean का मतलब है small और less और कम. Therefore to be seated in the mean. और दूसरे वाले mean का मतलब है middle class family. So Nerissa is saying कि इसका मतलब middle class family में होना कोई छोटी खुशी की बात नहीं है. अपने आप में ये बहुत बड़ी खुशी की बात है टू बी अ मेंबर, टू बी अ पार्ट ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली. सुपरफ्लुइटी कम सूनर बाय वाइट हेयर्स. सुपरफ्लुइटी मीन्स वेस्टफुलनेस, क्योंकि जब हमारे पास एक्सेस होता है, हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं या फिर फॉर्च्यून, बहुत अच्छे फॉर्च्यून्स में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी कैन से दैट अ प्रिंस और अ प्रिंसेस और अ किंग और अ क्वीन हु हैव गॉट wealth and good fortune in abundance. So superfluity के केस में भी क्या होता है, या फिर जब इंसान के पास बहुत एक्सेस पैसे होते हैं, उस केस में भी हम बहुत जल्दी वाइट हेयर शो करने लगते हैं. And white hair is an indication of worries, of tension, of stress, exertion, exhaustion, and then showing all those indications of old age that generally a person begins to show when a person is actually getting old or is getting weaker and older due to the problems in life and tensions in life. So in case of superfluity also it happens that a person begins to show such indications or begins to indicate these signs of worries and problems and tensions. However, if I talk about competency, now competency over here has been referred to just enough. That is a middle class family which neither has more than enough nor is dying due to hunger or is lacking from all the resources. So here you can say that competency is that particular section or class of the society which lives a happier and a longer life just because they neither have more than enough, which they which becomes a cause of problem or worries, and nor do they starve or die due to hunger. So they have just enough, जितना उनको चाहिए उतना उनके पास है. And I think that's the best section of the society who lives a happy life. It was said by Nerissa. Then Portia is saying good sentences and well pronounced. That means तुमने काफ़ी अच्छी बात की है और बहुत अच्छी तरह से भी की है. So Nerissa is saying they would be better if well followed. So Portia ने तो actually comment किया, Nerissa ने actually comment किया था Portia पे. तो जब Portia ने कहा कि तुमने बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छी तरह से कही है, तो Nerissa ने उस पर कहा कि इन बातों का वेटेज और ज़्यादा हो जाएगा और ये बातें और ज़्यादा बेहतर होंगी अगर इनको फॉलो भी किया जाए. ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इनको अगर फॉलो किया जाए. नाउ व्हाट शी मीन्स टू से, शी एक्चुअली इज़ ट्राइंग टू पॉइंट आउट दीज वर्ड्स टू Portia by making her realize कि see you have your good fortunes in abundance, and despite that you are showing all sorts of worries and indications of tension and stress and exertion. So Nerissa was not able to accept that, and that's why Nerissa had commented in this manner. So Portia is saying
if to do were as easy to know what were good to do, chapels had been churches, and poor men's cottages, princes' palaces. All right. Portia is saying it is actually very easy to say something or to instruct something or to ask someone to do something, but it is really difficult to do that task yourself or himself, herself, right? Example कि पोर्शिया ने कहा कि अगर करना उतना ही आसान होता जितना कि कहना होता है, तो फिर तो हम चैपल्स को भी चर्च कह देते और हम छोटे छोटे कॉटेजेस को भी पैलेसेस का नाम दे देते. अब इसका मतलब क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगेन दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन योर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अच्छा, इससे क्या मतलब है पोर्शिया का? पोर्शिया वांट्स टू से कि अगर करना इतना आसान होता जितना कि कहना, तो फिर तो हम चैपल्स को चर्च का नाम दे देते. चैपल इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी स्मॉल चर्च, और यू कैन से अ स्मॉल वर्शिपिंग प्लेस. However, if we compare a church with a chapel, then church is actually quite big in size. In the same manner, if we see a small cottage of a poor man, then the small cottage is just a small cottage. और अगर उस स्मॉल कॉटेज को हम कंपेयर करें किसी के महल से, किसी प्रिंस के, किंग के, क्वीन के महल से, तो बहुत बड़ा होगा. लेकिन कहने के लिए तो चैपल भी एक वर्शिपिंग प्लेस है और चर्च भी एक वर्शिपिंग प्लेस है. कहने के लिए तो स्मॉल कॉटेज भी किसी का घर है और बड़ा सा पैलेस भी किसी का घर है. तो कहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या एक्चुअल में एक चैपल और चर्च में, एक कॉटेज और पैलेस में कोई कंपैरिजन है? आसान है चैपल को चर्च बनाना या कॉटेज को पैलेस बनाना? नहीं. कहना आसान है लेकिन करना आसान नहीं है. इट इज़ अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शंस. एक अच्छा प्रीचर वो है, एक अच्छा टीचर वो है, एक अच्छा डिवाइन, एक अच्छा प्रीस्ट वो है जो अपनी सिखाई बातों को, अपनी कही बातों को खुद भी फॉलो करे. I can easier teach 20 what were good to be done than be one of the 20 to follow my own teaching. हम आराम से 20 लोगों को कोई बात सिखा सकते हैं, लेकिन उन 20 में से एक हम भी खुद वो इंसान बन जाएं जो अपनी ही बातों को फॉलो करें, तो ये मुश्किल काम है. एक साथ 20 लोगों को कुछ सिखाना इज़ ईजी, बट खुद भी उन 20 में से एक हो जाना, उन बातों को करने के लिए, फॉलो करने के लिए, ये मुश्किल है. The brain may devise laws for the blood, but a hot temper leaps over a cold decree. Such a hair is madness the youth to skip over the meshes of good counsel the cripple. All right, this is very important. See, here Portia is actually justifying herself in front of Nerissa by saying all this and by telling Nerissa that it happens in the young age that a person has got certain wishes and the person is not able to control his desire or her desire, especially in that young age when a person is quite wild in thoughts and quite willful and carefree in temperament. However, when Portia said that she was feeling tired of this great word, then Nerissa misunderstood her, and Nerissa took everything only in terms of materialism, or you can say wealth, money and fortune. But Nerissa should have understood that it's not only money that can make a person happy. So here Portia had said those statements in some other context. And what is that? The context in which Portia had said this statement that she is feeling exhausted due to this great word, it was because of the hindrances in her way of being able to choose a husband of her own choice or of her own will. And she is restricted by the will or by that wasiyat which has been prepared by her father. So just because she is restricted to make any choice for her husband or even to refuse anyone, if by mistake or coincidentally or somehow someone chooses the right casket,
So we can understand how much she is like restricted or confined to this important decision of her life ना. She is not able to make this important decision of her life herself. तो वो कह रही है कि एक जो यंग एज होती है इसमें एक इंसान कुछ इस तरह के टेम्परामेंट में होता है जिसमें उसके दिमाग को तो बहुत कुछ पता होता है, रीज़न्स पता होते हैं, लॉज पता होते हैं, कानून पता होता है, रेगुलेशंस पता होते हैं, दिमाग प्लान भी करता है, डिवाइस भी करता है लॉज को, कानून को फॉर द ब्लड का मतलब है फॉर द बॉडी, फॉर द हार्ट, जो कि वो बनाता भी है बहुत से कानून दिल के लिए, हार्ट के लिए, बॉडी के लिए। लेकिन होता क्या है कि इवेंचुअली दिमाग जीतता नहीं है, जीतता है हार्ट। क्यों? क्योंकि जो दिल है, जो हार्ट है, जो ब्लड है, जो बॉडी है, उसके अंदर एक अलग सा पैशन होता है। हार्ट की जो डिज़ायर होती है वो पैशनेट होती है और दिमाग के बनाए हुए जो कानून होते हैं वो कोल्ड डिग्री के होते हैं, मतलब उनका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कोल्ड होता है। और जो हार्ट की डिज़ायर है वो वार्म होती है, गर्म होती है। तो पैशन जो है वो दिमाग को डोमिनेट कर जाता है। इसका मतलब ये है कि दिल जो है वो हावी हो जाता है दिमाग के बनाए हुए कानून पे और eventually a person ends up following his heart's desire instead of going with the plans and the rules and the regulations made by the brain. So वही चीज़ लिखी है यहाँ पर कि ब्रेन जो है बहुत कानून बनाएगा लेकिन दिल की जो डिज़ायर्स हैं वो हमेशा उस दिमाग के कानून को कंट्रोल कर लेंगी। बट अ हॉट टेम्पर लीप्स ओवर अ कोल्ड डिग्री। हॉट टेम्पर रेफर्स टू द पैशनेट डिज़ायर ऑफ हार्ट एंड लीप्स ओवर मीन्स डोमिनेट्स। कोल्ड डिग्री रेफर्स टू द plans and the reasons and the laws, regulations, rules which are made by the brain. They have been referred to as cold degree. So cold degree दब जाती है, dominate हो जाती है passionate heart के desire से। Such a hare is the madness. Alright, hare is actually a rabbit which is quite wild and quite playful and active and lively. So उस हेयर से कंपेयर किया गया है एक इंसान की यंग एज को। जैसे एक हेयर बहुत एक्टिव, बहुत विलफुल, बहुत केयरफ्री होता है, उसी तरह से एक इंसान अपनी यंग एज में होता है, बिल्कुल पागल सा, और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसे रीज़न्स पता भी होते हैं, उसके दिमाग के अंदर एबिलिटी होती भी है रीज़नेबल तरीके से सोचने की, तब भी उसका दिल उसके दिमाग को डोमिनेट कर लेता है। टू स्किप ओवर द meshes मीन्स नेट, जाल, ऑफ गुड काउंसिल मीन्स गुड एडवाइसेस और एक्सहॉर्टेशंस। द क्रिपल मतलब अगर उसे कोई अच्छी सलाह देता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसे दबाने की या रोकने की कोशिश कर रहा है। एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप एक यंग एज में हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्टी के लिए जाना चाहते हैं लेकिन आपको अलाउ नहीं किया जा रहा, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं कि तुम पार्टी में मत जाओ, माहौल ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, बहुत रात की पार्टी है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गो। तो आपके दिमाग को भी पता है कि आपके फादर सही कह रहे हैं, आपकी मदर ठीक कह रही हैं, आपके दिमाग को सारी चीज़ों का पता है, सारे कानून पता है, सारी रीजनिंग एबिलिटीज़ है उसके अंदर, लेकिन दिल कह रहा है कि दोस्त भी तो जा रहे हैं, हमें जाना चाहिए। आप जाना चाहते हैं क्योंकि आपके दोस्त जा रहे हैं और आपके दिल की जो डिज़ायर है, ये जो हार्ट की डिज़ायर है, इतनी ज़्यादा पैशनेट होगी कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। और फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके पेरेंट्स आपको सलाह दे रहे हैं वो आपके लिए जाल बिछा रहे हैं, वो आपको उस जाल में फंसाना चाहते हैं, वो आपको क्रिपल करना चाहते हैं, लेम करना चाहते हैं ताकि आप उस जाल में फंस के रह जाएं। मतलब आपको अपने से बड़ों की सलाह एक जाल की तरह नज़र आती है जिसमें आप फंसना नहीं चाहते और आप अपने दिल की सुनना चाहते हैं और दिमाग के रीज़न्स को, एबिलिटी ऑफ रीजनिंग को, लॉजिकल थिंकिंग को आप डोमिनेट करके अपने दिल की बात फॉलो करते हैं इवेंचुअली। बट दिस
अच्छा, ये सब कब होता है? यंग एज में. बट दिस रीजनिंग इज़ नॉट इन द फैशन टू चूज़ मी अ हस्बैंड. तो वो कह रही है लेकिन नेरिसा मेरे साथ ऐसा नहीं है, हम चाहें भी तो भी अपने दिल की बात नहीं सुन सकते. ये ये जो एक नॉर्मल एक ह्यूमन टेंडेंसी है यंग एज में जो एक इंसान के साथ होता है, ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है. हम चाहें भी तो भी ये मेरे लिए फ़ैशन में नहीं है. हम चाह कर भी अपनी मर्ज़ी से एक अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज़ नहीं कर सकते. ओ मी द वर्ड चूज़, और बल्कि चूज़ वर्ड तो मेरे लिए शायद बहुत ही गलत होगा. बिकॉज आई मे नाइदर चूज़ हु आई वुड नॉट रिफ्यूज़ हु आई डिसलाइक. क्योंकि हम तो ना तो चूज़ कर सकते हैं उसे जिसे पसंद करते हैं या जो हमें पसंद आए, और ना ही रिफ्यूज़ कर सकते हैं उसे जिसे हम नापसंद करें. So is the will of a living daughter curbed by the will of a dead father. यहाँ पर अगेन will का दो मीनिंग है. पहले वाले will का मतलब है ख्वाहिश, डिज़ायर, और दूसरे वाले will का मतलब है वसीयत. इस तरह से एक ज़िंदा बेटी की ख्वाहिश एक डेड फादर की वसीयत ने दबा दिया है, कर्ब कर दिया है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कन्फाइन कर दिया है. Is it not hard, Nerissa, that I cannot choose one nor refuse none? Nerissa, आप तुम ही बताओ, क्या ये एक मुश्किल चीज़ नहीं है कि मेरे पास ना तो चूज़ करने का ऑप्शन है अपने हस्बैंड को, लाइफ पार्टनर को, और ना ही रिफ्यूज़ करने का ऑप्शन है. So Nerissa is saying, your father was ever virtuous and holy man. At their death have good inspirations. आपके फादर हमेशा से एक बहुत अच्छे इंसान थे. वो एक होली मैन थे, एक रिलीजियस मैन थे, और रिलीजियस मैन के साथ ऐसा होता है एट द टाइम ऑफ देयर डेथ कि उनको कुछ अच्छे इंस्पिरेशंस या फिर उनको कुछ डिवाइन गाइडेंस फ्रॉम गॉड डायरेक्टली उनको कुछ चीज़ों का उनको एहसास हो जाता है डेथ के टाइम. उनको गॉड की तरफ से एक स्पेशल पावर, एक स्पेशल गाइडेंस मिलती है जिससे उनको एक नॉलेज हो जाती है कि आगे क्या सही होगा, क्या गलत होगा, क्या होने वाला है. Therefore, the lottery that he has devised in these 3 chests of gold, silver, and lead, whereof who chooses his meaning chooses you, will no doubt never be chosen by any rightly but one who shall rightly love. और इसीलिए ये जो लॉटरी है, लॉटरी का मतलब ये जो ट्रायल ऑफ लक है, जो किस्मत आजमाने वाला यहाँ पर मैटर है, इस केस में उन्होंने जो प्लान किया था, हैथ मीन्स हैज़, डिवाइज्ड मीन्स प्लान, उन्होंने प्लान करके जो 3 ड्रॉर्स रखे हैं, 3 कैस्केट्स रखे हैं, गोल्ड का, सिल्वर का और लेड का, जहाँ पर उन्होंने कुछ लिखा भी है, कुछ वर्ड्स भी तीनों कैस्केट्स पे लिखे हैं. तो जो उन शब्दों के मीनिंग को समझ जाएगा सही तरीके से, वही सही कैस्केट को चूज़ कर पाएगा, और वो इंसान फॉर श्योर तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान होगा. वो होगा जो तुम्हें सच में प्यार करता है, और वो कोई गलत इंसान नहीं होगा. एटलीस्ट दिस मच यू शुड ट्रस्ट योर फादर. बट वॉट वार्मथ इज़ देयर इन योर अफेक्शन towards any of these princely suitors that are already come. लेकिन तुम्हारे दिल में इन सूटर्स के लिए क्या ख्याल है जो अब तक आ चुके हैं, और तुम्हारा इनके बारे में क्या ओपिनियन है? What do you think about them? Do you like them? Do you love them? What is your opinion basically? So Portia is saying, I pray thee. I pray thee means I pray you, I request you, overname them. Please tell me the names of those suitors or the ones who have come with the proposal of marriage. Those who come with the proposal of marriage, they are called suitors. And as thou means you, namest them means name them, I will describe them. और जैसे जैसे तुम उनका नाम बताओगी, हम उन्हें डिस्क्राइब करते जाएंगे. And according to my description, level at my affection. और मेरे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तुम मेरे अफेक्शन को जज करते जाना. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ माई वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे दिल में उनके लिए क्या ओपिनियन है. Nerissa is saying, first there is the Neapolitan prince. पहला जो है वो Neapolitan prince है. Neapolitan prince is the prince from Naples. Portia is saying, I means yes, that's a colt indeed. Colt is actually a wild horse, a wild young horse. It is very important for you to understand, and you should take it as a key point to remember that for the Neapolitan prince or the prince from Naples, Portia had used this keyword colt, which simply means a wild young horse. Indeed means truly or actually. For means because. He doth means he does nothing but talk of his horse.
क्योंकि ये जो बंदा है नेपल्स का प्रिंस, ये जब से आया है इसने ना तो कोई अपनी बात की, ना किसी और की बात की, ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, बात की तो सिर्फ अपने हॉर्स के बारे में. एंड ही मेक्स इट अ ग्रेट अप्रोप्रिएशन, मीन्स ही ऑल्सो अप्रिशिएट्स हिमसेल्फ ऑन दिस ग्राउंड दैट ही इज़ एबल टू शो हिज हॉर्स हिमसेल्फ. Appropriation to his own good parts means he considers this particular thing in himself as a very good quality. ये अपने अंदर इस एबिलिटी को कि ये अपने हॉर्स को खुद छू पहना सकते हैं, इस बात के लिए ये अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, इसे अपनी एक बहुत अच्छी क्वालिटी मानते हैं ये. सो ही मेक्स इट अ गुड अप्रोप्रिएशन का मतलब है ही एड्स दिस थिंग अबाउट हिमसेल्फ विद अ लॉट ऑफ यू कैन से हैप्पीनेस एंड विद द सेंस ऑफ प्राइड, विद द फीलिंग ऑफ प्राइड कि देखो आई कैन शो माई हॉर्स माई सेल्फ. सो दिस इज़ वॉट ही कंसीडर्स एज वन ऑफ हिज गुड क्वालिटीज़ एंड ही अप्रिशिएट्स हिमसेल्फ अबाउट इट. I am much afeared, my lady, his mother played false with a smith. And Portia is actually jesting by saying this statement that I am very much scared about this. And also I think that my lady, or she's referring to his mother. That means she is referring to the mother of the Prince of Naples. She is saying कि पक्का इस प्रिंस की नेपल्स का एक अफेयर रहा होगा, किसके साथ, स्मिथ के साथ, मतलब ब्लैक स्मिथ के साथ. आई एम श्योर कि इनका कोई अफेयर रहा होगा, इनकी मदर का कोई अफेयर रहा होगा ब्लैक स्मिथ के साथ. एंड दैट्स वाई ही इज़ सो एक्सपर्ट इन डूइंग दिस एंड ही ऑल्सो अप्रिशिएट्स हिमसेल्फ फॉर बीइंग एबल टू शो हिज हॉर्स हिमसेल्फ. Nerissa is saying then there is the County Palatine, which is referring to German count or a nobleman, you can say. जब नेरेसा ने काउंटी पैलेटाइन का नाम लिया तो अब पोर्शिया का रिएक्शन क्या है? He doth means does nothing but frown, as who should say, and you will not have me choose. He hears merry tales and smiles not. All right, Portia is saying वो तो कुछ करता ही नहीं है सिवाय इसके कि हर वक्त उसके माथे पे फ्राउन होता है. माथे पे फ्राउन का मतलब लाइक दिस ना, माथे पर फोरहेड पे रिंकल्स होना. सो ही हैज़ ऑलवेज गॉट रिंकल्स ऑन हिज फोरहेड एंड ही इज़ ऑलवेज यू नो लाइक अपसेट, सैड और सॉरफुल, एंग्री. जैसे कि वो कहना चाहता है एंड यू विल नॉट हैव मी चूज़. ओके, अगर हम तुम्हें पसंद है, यू वॉन्ट टू मैरी मी, चूज़ मी. इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू मैरी मी, डू नॉट चूज़ मी. मतलब इट डजेंट अफेक्ट मी एनी वे, इट डजेंट अफेक्ट मी, फ़र्क नहीं पड़ता, चूज़ करो नहीं करो, शादी करो नहीं करो. जैसे लग रहा है उसने यहाँ आकर मेरे ऊपर कोई एहसान किया है. पोर्शिया ये कह रही है. ही हियर्स मैरी टेल्स एंड स्माइल्स नॉट. उसे कितने भी जोक्स क्यों ना सुन ले वो. मैरी टेल्स रेफर्स टू द जोक्स, और ऐसी कहानियाँ, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर हंसी आ जाए. वो ऐसी बातें सुनकर भी मुस्कुराता तक नहीं है. आई फियर ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसोफर व्हेन ही ग्रोज ओल्ड. हमें तो ऐसा लगता है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब वो एक वीपिंग फ़िलोसोफर में चेंज हो जाएगा. फ़िलोसोफर इज़ अ डीप थिंकर एंड वीपिंग फ़िलोसोफर इज़ समवन हु थिंक्स वेरी डीपली एंड रिमेन्स नेगेटिव ड्यू टू हिज नेगेटिव थॉट्स. So I'm sure that he is such a pessimistic personality that he will always remain negative and will think deeply in a negative way, and this is how he will turn into a sad philosopher in his old age, being so full of unmannerly sadness in his youth. Because if I talk about his young age, then he has got such sadness which is like इंसल्टिंग, इम्पर्टिनेंट, इम्प्यूडेंट और डिसरेस्पेक्टफुल. मतलब वो हर वक्त इतना सैड रहता है कि देख के ऐसा लगता है जैसे सामने वाले की बेइज्जती कर रहा है, जैसे इंसल्ट कर रहा है सामने वाले को हर वक्त मुंह बना करके वो. तो जब यंग एज में उसकी सैडनेस का ये हाल है तो फिर ओल्ड एज में तो आई एम श्योर कि वो एक वीपिंग फ़िलोसोफर बन जाएगा. I had rather be married to a death's head with a bone in his mouth than to either of these. और अच्छा होगा कि मेरी शादी किसी स्केलेटन से हो जाए, इसके बजाय कि मेरी शादी इन दोनों में से किसी से भी हो. इन दोनों में से मतलब नेपोलिटन प्रिंस या फिर काउंटी पैलेटाइन. गॉड डिफेंड मी फ्रॉम दीज टू. आई विश कि गॉड हमें इन दोनों से बचाए. सो नेरेसा इज सेइंग, हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मोनाशियर लेपॉन. मोनाशियर इज़ एक्चुअली मिस्टर.
Munashir is a French word which means Mr. in English. So Nerissa is saying क्या कहना है तुम्हारा French Lord Mr. Le Bon के बारे में. Portia is saying God made him and therefore let him pass for a man. अब क्योंकि गॉड ने उनको इंसान बना दिया है तो हमें भी इंसान ही मानना पड़ेगा. इन ट्रूथ आई नो इट इज़ अ सिन टू बी अ मॉकर. तो कहीं ना कहीं वो मजाक उड़ा रही है ना, तो इसलिए वो ये भी कह रही है एट द सेम टाइम कि वैसे पता है हमें कि ये गुनाह है किसी का मजाक बनाना. मॉकर होना मतलब किसी का मजाक बनाने वाला इंसान होना गुनाह है. But why he hath a horse, hath means has a horse better than the Neapolitans and a better bad habit of frowning than the Count Palatine. But what can I say about him? Actually, he is a worse combination of both these two whom you have talked earlier, जिनको अभी तुमने describe किया है. उन दोनों का एक वर्स कॉम्बिनेशन है ये इंसान जिसके बारे में तुम अब बता रहे हो. दैट मीन्स मिस्टर ले बॉन जो कि फ्रांस से आए हैं, फ्रेंच लॉर्ड हैं. इनको तो इंसान बोला ही नहीं जाता हमसे अब, लेकिन स्ट्रक्चर इंसान का है तो इंसान बोल देते हैं. असल में इनका जो हॉर्स है, इनका जो घोड़ा है वो नेपोलिटन प्रिंस के घोड़े से भी ज़्यादा अच्छा है. इट मीन्स कि ये अपने हॉर्स की नेपोलिटन प्रिंस से भी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं. और अगर इनके सैड रहने की बात की जाए तो ये काउंटी पैलेटाइन से भी ज़्यादा हर वक्त सैड होते हैं. तो ही इज़ लाइक अ वर्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज टू सूटर्स whom you have described to me earlier. So he is every man in no man. It is a very, very important line. I have also told about this in the video lecture which is just a summary of this scene. I have already made a summary of this scene and in that I have described this to you. Again I am telling you there are some keywords which you must remember in regard to different suitors. Example, for the Neapolitan prince, as soon as his name was taken by Nerissa, Portia described him as a colt. You must remember this keyword. Then as soon as Nerissa took the name of County Palatine, Portia described him as a weeping philosopher, and this is a keyword for him which you must remember. Then as soon as Nerissa took the name of Mr. Le Bon from France, then Portia described him in this line through these words, and which is again keywords. These are the keywords for this particular suitor which you must remember and you should underline as well. कोल्ट को अंडरलाइन करना है, वीपिंग फिलोसोफर, और यहाँ पर मिस्टर लेबॉन या मुनाशिर लेबॉन के लिए अंडरलाइन करना है ही इज़ एवरी मैन इन नो मैन. इट मीन्स कि दिस मैन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पर्सनैलिटीज़ बट he does not have a unique personality of his own. इनकी अपनी कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है, जबकि ये जो भी हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पीपल. इफ़ अ थ्रॉसल सिंग ही फॉल्स स्ट्रेट ए केपरिंग, इसका मतलब ये है कि अगर ये थ्रॉसल को, बर्ड को गाते हुए सुनेंगे तो ये फ़ौरन डांस करने लग जाएंगे. ही फॉल्स स्ट्रेट ए केपरिंग मीन्स ही विल बिगिन टू डांस. ही विल फेंस विद हिज ओन शैडो, ये अपनी ही शैडो से फेंसिंग करने लग जाएंगे, विच इज़ अ गेम काइंड ऑफ अ थिंग in which one has to draw sword and then have that sword fighting. So उन्होंने कहा कि ये इस तरह का इंसान है, इतना whimsical, humorous और crazy, moody टाइप का, कि this man can start doing this or fencing with his own shadow. अपनी ही shadow के साथ ये तलवारबाजी करने लग जाएंगे. If I should marry him, I should marry 20 husbands. इस आदमी से शादी करने का मतलब है कि मेरी शादी एक साथ 20 लोगों से हो जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान से नहीं होगी. If he would despise me means hate me, I would forgive him. Sorry. अगर ये इंसान हमसे नफ़रत करता है तो हम इसे माफ़ कर देंगे. For means because if he love me to madness, I shall never requite him. क्योंकि मोहब्बत तो चाहे ये पागलपन की हद तक क्यों ना कर ले, I cannot love him back. I can rather hate him back very easily. I can forgive him very easily for hating me, but I cannot love him back. Nerissa is saying, what say you then to Falconbridge, the young baron of England? उनके बारे में क्या कहना है तुम्हारा?
फैल्कन ब्रिज के बारे में, जो कि इंग्लैंड से आए हैं, यंग पेरेंट हैं इंग्लैंड के, इंग्लिश मैन हैं. Portia is saying, you know, I say nothing to him. For means because he understands not me nor I him. Actually हम उनसे कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि ना तो वो मेरी बात समझते हैं और ना हम उनकी बात समझते हैं. He hath means has neither Latin, French nor Italian. क्योंकि ना तो वो लैटिन जानते हैं, ना फ्रेंच जानते हैं और ना इटालियन जानते हैं. और ये वो लैंग्वेजेस हैं जो पोर्शिया को आती है. और वो जानते हैं इंग्लिश, जो कि पोर्शिया को बिल्कुल नहीं आती. And you will come into the court and swear that I have a poor pennyworth in the English. And being in the court, you must be able to see that I have got a very poor knowledge of English and am not able to speak English at all. This is what Portia is saying. So Portia is saying that just because I'm not able to speak English and he is not able to speak those languages which I know, so there is a barrier of communication due to the lack of a common language between us. He is a proper man's picture, although as much as I have seen him and I know him, I can say that he looks handsome, but alas, who can converse with a dumb show? But it is such a great matter of sorrow कि he looks handsome, but who can talk to a dumb show? Dumb show is like one who is speechless all the time. तो वो बहुत ही अच्छा क्यों नहीं है, लेकिन वो एक डेकोरेटिव आइटम की तरह ही जगह बैठा हुआ है और अच्छा लग रहा है. बट डम शो से, या फिर जो इंसान स्पीकिंग का कोई साइन ही नहीं शो कर रहा, हमारे बीच कोई एक कम्युनिकेशन का सोर्स कॉमन ही नहीं है, तो उससे कौन बात कर सकता है. हाउ ऑडली ही इज़ सूटेड. लेकिन बहुत स्ट्रेंज तरीका है, ऑडली इज़ स्ट्रेंजली, उसका अपने आप को ड्रेसअप करने का. ऐसा लगता है, आई थिंक ही बॉट हिज टॉपलेट इन इटली, हिज राउंड टोज इन फ्रांस एंड हिज bonnet in Germany and his behavior everywhere. I think he is a great traveler and has traveled a lot across the world, just because when I see his dress I can very well notice that he has brought his jacket from Italy. उसने अपनी जैकेट इटली में ख़रीदी है, टॉपलेट, एंड देन अपनी जो ट्राउज़र्स हैं वो फ्रांस में लिए हैं और जो बॉनेट है वो जर्मनी से ली है. और ऐसा लगता है जैसे उसका जो बिहेवियर है, मतलब जो एक उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी है, इन द वे ही बिहेव्स, ही सीम्स टू बी एन एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर, and that's why it appears as if he has adopted his behavior from different places, different cultures he has learned, and he reflects that in himself. So this is what he seems to be. Then Nerissa is saying, what think of you of the Scottish lord, his neighbor? तो उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम स्कॉटिश लॉर्ड के बारे में क्या सोचती हो, जो कि उनका नेबर है. किसका नेबर है? इंग्लिश मैन का. मतलब जो स्कॉटलैंड से आया है वो इंग्लैंड, क्योंकि स्कॉटलैंड इंग्लैंड के पास है, तो स्कॉटिश लॉर्ड स्कॉटलैंड से आया है, तो वो इंग्लिश मैन का नेबर हुआ. Portia is saying that he hath means has a neighborly charity in him. For means because he borrowed a box of the year of the Englishman, and so he would pay him again when he was able. I think the Frenchman became his surety and sealed under for another. Portia is saying, हमें ऐसा लगता है कि स्कॉटिश लॉर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नेबोली चैरिटी है. Again, Portia is actually mocking here or making fun of this Scottish lord by saying, I think कि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिल का इंसान है और चैरिटी करने वाला इंसान है, और अपने नेबर के साथ तो इतना ज़्यादा वो चैरिटी करना चाहता था कि नेबर से एक थप्पड़ कान के पास खाने के बाद भी उसने उसे पलट के कोई जवाब नहीं दिया, कुछ कहा नहीं, उसे थ्रेटन भी नहीं किया, और उसने बस ये कहा कि वो नेक्स्ट टाइम जब एबल होगा, जब बेटर पोजीशन में होगा, तब बदला लेगा इस थप्पड़ का. और कहीं ना कहीं वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाया, बोल नहीं पाया, लड़ नहीं पाया, अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाया, और उसके लिए बोलना पड़ा फ्रेंच मैन को. आई थिंक फ्रेंच मैन उसकी श्योरिटी, या फिर आप कह सकते हो कि उसके लिए एक वारंटी बना. वो खड़े हुए फ्रेंच मैन, और उन्होंने इनके बिहाफ पर ये चीज़ बोला कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए. तो वो श्योरिटी बने या फिर सिक्योरिटी बने, गारंटर बने, और उन्होंने इस बात को साइन करवाया प्रॉपर, मतलब एक दूसरे को ये अश्योर किया कि नेक्स्ट टाइम इट शुड नॉट हैपन. तो फ्रेंच मैन हैड टू कम
in between and look after this matter and had to protect this Scottish lord who was not able to save himself or protect himself from the Englishman. So, how can Portia expect him to be a good husband and protect Portia when he was not able to protect himself? So, this was the description given by Portia about this Scottish lord. I think I should wind it up here only, because from in the next I will go ahead and complete this scene in the next video lecture. Thank you so much for watching.